Every 40 seconds, someone in the world dies by suicide. Closer to home, in 2022, India's recorded rate of deaths by suicide was 12.4 people per 1 lakh population. Today, on World Suicide Prevention Day, we are here to say that silence is not the answer. Hello, Namaskar, welcome, Swagatam. You're with the Versatile Doctor. My name is Dr. Abhinav Atul, an author, a YouTuber, the technical manager at TLB City, but first, a doctor. In the course of my career, I have treated many patients, but more important role that I try to play in the health and well-being of people around me surely comes from raising awareness. For people to want to be healthy, for them to know how to remain healthy, and to make sure to make them aware when and how to seek help. डेंगू, मलेरिया, टाइफॉइड, इन सब के बारे में तो हमने बचपन से सुना है. हम समझते हैं इनसे बचने के लिए क्या करना चाहिए और अगर ऐसी कोई बीमारी हो ही जाए तो इलाज करवाना चाहिए, राइट? आज भी हम पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स, डिप्रेशन, ईटिंग डिसऑर्डर्स, पीटीएसडी जैसी बातों के बारे में खुलकर बात नहीं करते हैं, लेकिन बात करनी चाहिए. जैसे बचपन में सिखाया जाता है कि बीमारियों से बचने के लिए स्वच्छता जरूरी है, मच्छरों से बचना जरूरी है, वैसे ही बात करनी चाहिए कि मानसिक विकारों से बचने के लिए सबसे पहले तो इसके बारे में जागरूकता जरूरी है. We must acknowledge that mental health issues exist and people can even die from them. Also, like most diseases, diagnosing on time and treating properly can not only help save lives but also let people get back on their feet, leading productive lives. To help us navigate this sensitive conversation, I'm joined by someone who works on the front lines of mental health, psychologist and counselor Shalvi Singh. She not only supports clients in therapy but also shares knowledge through her videos and podcast at The Therapy Cure. Shalvi, thank you for being here. Please tell our viewers more about yourself and about what you do. Sure. First of all, I would like to extend my heartfelt gratitude to Dr. Abhinavatul, who is well known as a versatile doctor, for inviting me to this live interview on such an important occasion, World Suicide Prevention Day. And very good evening to all. As you know that my name is Shalvi Singh and by profession I'm a counseling psychologist and a practitioner of solution focused brief therapy and positive psychology. I have been practicing for the past 3 years, supporting individuals in navigating different life challenges. Although I primarily work with young adults, my journey, even during my college days, has given me opportunities to work with people from diverse backgrounds. This has made me flexible and open to addressing various concerns, whether they are related to parenting, relationships, or mental health issues that can be effectively managed through therapy. And yes, I belong to Kanpur, Uttar Pradesh, where I also run my offline center, the Therapy Cure, alongside my colleague Dr. Meet Shamali, who specializes in neurophysiotherapy. Together, we provide both offline and online sessions covering not just psychological support, but also holistic well being through physiotherapy, yoga, pranayama, and so on. So, as a mental health professional, my vision is to create a safe, compassionate, and solution oriented space to people while helping them enhance their mental resilience and overall quality of life. Thank you so much. Lovely, lovely introduction. Thank you for being here. Now, before we dive into the heart of our discussion today, let me remind everybody that we are live now on my YouTube channel, TLB City YouTube channel, my Instagram and TLB City Instagram. So wherever you have joined us from, I'm so glad that you have decided to make us part of your evening on this very special occasion. And the comments on all platforms are open. You can put in any questions, doubts, or any comments that you want. We will make sure that we address all of them. Now, suicide. This is a touchy topic, sensitive subject to broach.
there would be many among you who have one of their known people die by suicide. It is almost always a surprise. Like हमने तो कभी सोचा ही नहीं था कि वो ऐसा कदम उठाएंगे, या कुछ समय पहले ही तो मिले थे, हंसकर बात कर रहे थे, ऐसी क्या समस्या थी जिनको मन में दबाए दबाए अपनी जिंदगी ही खत्म कर दी. There is no doubt that hearing about someone you know take this step is traumatic. The closer you are to the act, the closer you had been to the person, the harder this hits. Often, one of the first thoughts that come up is, could we have done something? क्या हम कुछ और कर सकते थे? क्या हमने कोई इंडिकेशन मिस कर दिया? क्या हम ऐसा कोई सपोर्ट दे सकते थे या कोई ऐसा कदम उठा सकते थे जिससे उस व्यक्ति को आत्महत्या करने का निर्णय नहीं लेना पड़ता? हमें कमेंट्स में बताइए, क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है? और अगर आप अपनी जिंदगी का कोई वाकया बयान करना चाहते हैं खुदकुशी से जुड़ा हुआ, तो जरूर बताइए. बिकॉज दिस इज वेयर वी नीड टू फोकस. बिकॉज yes, we can in most cases prevent suicides, because biologically survival is the natural state of humans. The thought of ending one's life doesn't come naturally or easily. It comes only when pain, illness, hopelessness or something like that overwhelm the natural instinct of the person. And in fact, research shows that people who have died by suicide or have had a non-fatal suicide attempt, they have sought help in some way or form. We can in most cases see some warning signs. शाल्वी के इंस्टाग्राम पर एक बहुत जानकारी पूर्ण वीडियो है सुसाइड के बारे में और उन साइंस और इंडिकेशंस के बारे में जिन्हें देखकर हम अपने किसी परिजन की मदद कर सकते हैं. द थेरेपी क्योर के इंस्टाग्राम पेज पर जाकर ये वीडियो जरूर देखिएगा. बट अभी मैं शाल्वी से रिक्वेस्ट करूंगा कि हमें अपने एक्सपीरियंस से बताइए कि क्या सच में अवेयरनेस और इस तरह सुसाइड प्रिवेंशन मंथ जो कि सितंबर है और सुसाइड प्रिवेंशन डे जो कि 2003 से हर साल सितंबर की 10 तारीख को मनाया जाता है, क्या ये सब चीजें मनाने से फायदा हो सकता है या ये बातें हमेशा बंद कमरे में ही करनी चाहिए या थेरेपी में ही करनी चाहिए? फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर दिस इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन. ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हम कुछ भी शुरुआत करने से पहले ये जानें कि क्यों बात करते हैं, क्या रीज़न है. तो अगर सबसे पहले हम बात करें सुसाइड की, तो एज वी ऑल नो दैट कि WHO के डेटा के हिसाब से हर 40 सेकेंड्स में दुनिया में एक इंसान सुसाइड करता है. मतलब एक ग्लोबल हेल्थ क्राइसिस है ये, जो सिर्फ एक इंसान को नहीं, उसके फैमिली, फ्रेंड्स और कम्युनिटी को डीपली अफेक्ट करता है. अब बात आती है कि अवेयरनेस क्यों क्यों ज़रूरी है अवेयरनेस यहाँ पर. सो रिसर्च क्लियरली बताती है कि जो लोग सुसाइड अटेम्प्ट करते हैं या फिर इसके बारे में सोचते हैं, उन्होंने किसी न किसी फॉर्म में हेल्प मांगी ज़रूर होगी, चाहे वो फ्रेंड्स के थ्रू हो, डॉक्टर्स के थ्रू हो या सोशल मीडिया पे इनडायरेक्टली सिग्नल दिया हो. लेकिन प्रॉब्लम ये है कि अक्सर उनकी बात को समझा नहीं गया या लोग समझ ही नहीं पाए एग्जैक्टली कि क्या हो रहा है. इसलिए अवेयरनेस कैंपेन्स और सुसाइड प्रिवेंशन डे काफ़ी सिग्निफिकेंट होते हैं. वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे और सुसाइड प्रिवेंशन मंथ का मेन पर्पस मेरे हिसाब से तो यही है कि हम लोगों को एजुकेट करें कि सुसाइड के वार्निंग साइंस क्या होते हैं, किस तरह की बातों को सीरियसली लेना चाहिए और किस तरह का टाइमली सपोर्ट देना चाहिए. ये दिन हमें रिमाइंड कराता है कि मेंटल हेल्थ की बातें सिर्फ थेरेपी रूम या क्लोज डोर्स तक लिमिटेड नहीं रहनी चाहिए, बल्कि ओपनली कम्युनिटी लेवल पर डिस्कस होनी चाहिए ताकि स्टिग्मा ब्रेक हो और लोग हेल्प लेने से भी बिल्कुल ना डरें. आपने पूछा कि इसका फायदा होता है या नहीं, तो यस, एब्सोल्युटली यस. इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट दिखाई देता है. फॉर एग्जांपल, जब किसी रीजन में सुसाइड अवेयरनेस प्रोग्राम्स चलाए जाते हैं, तो वहाँ सुसाइड रेट्स में डिक्लाइन देखने को मिला है. और रियल एग्जांपल्स में देखें तो ये भी है कि जब सेलिब्रिटीज़ या पब्लिक फिगर्स ओपनली अपने मेंटल हेल्थ स्ट्रगल्स के बारे में बात करते हैं, तो लोगों को करेज मिलती है अपनी बात शेयर करने की. ये एक रिपल इफेक्ट क्रिएट करता है, मुझे ऐसा लगता है.
सो एज अ साइकोलॉजिस्ट मैं भी अपनी तरफ से अवेयरनेस के लिए कंटिन्यूअसली काम कर रही हूँ, चाहे वो इन्फॉर्मेटिव वीडियोस बनाकर हो, इंस्टाग्राम पे शेयर करना हो, वर्कशॉप्स कंडक्ट करना हो, स्कूल कॉलेजेस स्टूडेंट्स के साथ सेशंस लेने हो। इससे लोगों को एक सेफ स्पेस मिलता है अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने का। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात ये है कि अवेयरनेस सिर्फ एक प्रोफेशनल की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। समझिए इसे, हर एक इंसान अपने लेवल पर कंट्रीब्यूट कर सकता है। आप अपने फ्रेंड्स और फैमिली के बीच सेफ कॉन्वर्सेशंस क्रिएट कीजिए, सोशल मीडिया पे पॉजिटिव मैसेजेस स्प्रेड कर सकते हैं। अगर किसी में भी साइंस देखने को मिलते हैं तो उसे इग्नोर मत कीजिए, और ये याद रखिए कि आई एम हियर फॉर यू। किसी भी सिचुएशन में जब इस तरह की बात होती है तो हो सकता है आप किसी ना किसी की लाइफ को बचा सकें। सो अवेयरनेस मैटर्स, सुसाइड प्रिवेंशन डे मैटर्स, एंड हम सबको मिलके एक सपोर्टिव कम्युनिटी क्रिएट करनी होगी। दैट्स ऑल। ये बिल्कुल सही बात है कि अवेयरनेस सिर्फ मेरी या सिर्फ शाल्वी की या हमारे जैसे प्रोफेशनल्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, क्योंकि बिल्कुल। सुसाइड और मेंटल हेल्थ इश्यूज से लड़ने वाले सिर्फ हम अकेले नहीं हैं, आप सब हैं। जैसा मैंने बताया अभी, आप सबको मालूम होगा आपके परिवार में या आपकी जानकारी में, आपके पड़ोस में, आपकी हाउसिंग सोसाइटी में या आपके जानकारी वाले कॉलेजेस में, स्कूल कॉलेजेस में आजकल कोई ना कोई हादसा जरूर हुआ होगा ऐसा जो आपको हिला के रख देता है। और तब आप ये सोचें कि काश हम कुछ कर सकते थे, तो हम कुछ कर सकते हैं। ये अवेयरनेस ही एक ऐसी चीज है, एक ऐसा टूल है जो सुसाइड के जैसे एक एंडेमिक से हमें लड़ने के लिए एक ताकत देता है। एंड आई थिंक मोस्ट ऑफ अस गेट स्टक इन समथिंग लाइक द जजमेंट मोड, द जजमेंट ऑफ द एक्ट और ए डिसीजन। लेकिन सोचिए, सही और गलत करना चाहिए था या नहीं करना चाहिए था, या खास तौर पे ये कि आत्महत्या के बारे में सोचने वाले लोग कायर होते हैं, जो जिंदगी से हार मान चुके होते हैं। ये सब सोचने से एक्चुअली कुछ भी फायदा नहीं होता है। ये नॉन प्रोडक्टिव थॉट्स हैं जो आपको अपने ही अंदर उलझा के रख देते हैं और कहीं भी आगे बढ़ने नहीं देते। क्योंकि समझ लीजिए, आप अपने बारे में अच्छे से जानते हैं कि आप किसी भी तरह की प्रॉब्लम का, किसी भी कठिनाई का कैसे सामना कर सकते थे, लेकिन किसी दूसरे के बारे में आप उतना नहीं जान सकते। किसी और की जिंदगी की जद्दोजहद आप शायद बाहर से सिर्फ देख या सुन सकते हैं, उसके बारे में बात कर सकते हैं, लेकिन कभी उसकी तरह से महसूस नहीं कर सकते। हर व्यक्ति अलग होता है, हर एक की सोच अलग होती है। खुदकुशी जैसा कदम किसी के व्यक्तित्व की एक कमी या गड़बड़ी से डिसाइड नहीं हो जाती। ये थॉट प्रोसेस बहुत कॉम्प्लेक्स होता है। इसलिए जरूरी है कि हम अपनी धारणाएं, अपनी प्रेजुडिस, अपने जजमेंट्स अलग करें। तभी हम वो देख पाएंगे जो शायद किसी और के लिए जिंदगी और मौत के बीच की लकीर हो। नो मैटर हाउ क्लोज यू आर विथ समवन, एज अ फ्रेंड, as a lover, as a spouse, or even as a professional therapist, someone going through a rough patch, they will never be able to open up to you and seek help if you are fixated on your own conclusions. Like, मेरी भी गर्लफ्रेंड ने मुझे डंप कर दिया था, मेरी लाइफ तो 2 दिन में ठीक हो गई थी, नॉर्मल हो गई थी। तुमको इतनी सी बात के लिए दुनिया छोड़कर चले जाने जैसा क्यों लग रहा है? मैंने, दिस इज नॉट सपोर्ट, दिस इज नॉट एन ओपन कॉन्वर्सेशन, दिस इज नॉट हेल्प। This is shutting your door to the person who may be trusted you. This is your refusal to understand that this is not about you. Many times, these prejudices and judgments stem from the myths that are out there about suicide. So let me ask Shalvi to share some of the common myths revolving around suicide and how wrong they are. वेल बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने उठाया है कि ऐसे बहुत सारे मिथ्स हैं। तो अक्सर हम देखते हैं कि सुसाइड के अराउंड बहुत सारे मिथ्स और मिसकंसेप्शंस होते हैं। ये मिथ इतने डीपली रूटेड हैं कि कभी-कभी हम अपने क्लोज लव वंस की बात सुनने के बजाय उन्हें जज कर देते हैं। जैसे आपने एक एग्जांपल दिया कि मेरी गर्लफ्रेंड ने भी मुझे डंप किया था, मुझे तो कुछ नहीं हुआ। सो अकॉर्डिंग टू मी दिस इज नॉट एग्जैक्टली एम्पैथी। ये इंसान के स्ट्रगल को इग्नोर करने जैसा भी है।
चलिए, मैं कुछ कॉमन मिथ्स और उनके फैक्ट्स शेयर करती हूँ। जैसे कि लोग कहते हैं ना कि जैसे कभी-कभी आपको सुनने को मिलेगा कि जो सुसाइड करना चाहता है, वो अपने आप कर ही लेगा। हम चाहते हैं कुछ भी कर लें, उसे रोक नहीं सकते। अब यहाँ पे फैक्ट क्या है, इसे समझने की कोशिश कीजिए। रिसर्च और रियल लाइफ एग्जांपल्स दोनों दिखाते हैं कि सुसाइड के अटेम्प्ट्स के पहले इंसान वार्निंग साइंस देता है, जैसे होपलेसनेस फील करना, अपनी बातें इनडायरेक्टली शेयर करना या बिहेवियर चेंज करना, और उन मोमेंट्स में सपोर्ट मिल जाए तो उनकी लाइफ बच सकती है। मतलब अवेयरनेस और टाइमली इंटरवेंशन बहुत मैटर करता है। अब एक और मिथ है कि सुसाइड वीक लोग करते हैं, जिनके अंदर विल पावर नहीं होती है। बट अकॉर्डिंग टू मी इसमें फैक्ट है। एक फैक्ट ये है कि ये बात बिल्कुल गलत है पूरी तरीके से। सुसाइड एक मेंटल हेल्थ कंडीशन का रिजल्ट होता है, जैसे डिप्रेशन, ट्रॉमा, सब्सटेंस अब्यूज या होपलेसनेस, और भी कई रीजंस हो सकते हैं। ये वीकनेस नहीं है, बल्कि एक मेडिकल और साइकोलॉजिकल कंडीशन है, जिसमें इंसान अपना पेन खत्म करना चाहता है, इवन लाइफ नहीं। और एक और मिथ है कि सुसाइड सिर्फ एक जेंडर या एक सिचुएशन का इशू है, जैसे लड़कियों के साथ दहेज या शादी के बाद के इश्यूज, या फिर हस्बैंड वाइफ में रिलेशनशिप की वजह से इस तरीके के मतलब मिथ बनते हैं। बट इसमें फैक्ट क्या है कि सुसाइड किसी एक जेंडर, एक रीजन या एक सोशल लेवल से डिफाइन नहीं होता। हर इंसान की कहानी अलग होती है और रीजंस मल्टीपल हो सकते हैं, जैसे इमोशनल, साइकोलॉजिकल, सोशल, फाइनेंशियल या इवन फोर्सफुल सिचुएशंस। अब मैं 2 रियल एग्ज़ाम्पल्स यहाँ पे शेयर करना चाहूँगी, जो मैंने एक्सपीरियंस किए। मतलब वो केसेस मुझे देखने को मिले। मैंने एक शॉर्ट थ्योरी में कोशिश करूँगी इन्हें एक्सप्लेन करने की, और दोनों पर्सपेक्टिव से, एक मेल के पर्सपेक्टिव से भी और एक फीमेल के पर्सपेक्टिव से भी। वरना लोगों को लगेगा कि नहीं, एज़ अ वुमन हूँ, तो मैं वुमेन का सपोर्ट कर रही हूँ। ऐसा नहीं है। एज़ अ साइकोलॉजिस्ट मैं वो दोनों एंगल से देखने की कोशिश कर रही हूँ कि एक यंग मैरिड वुमन जिनकी अरेंज मैरिज थी, फैमिली आउटवर्डली बहुत अच्छी थी, दहेज के इश्यूज भी नहीं थे, सब परफेक्ट लग रहा था। लेकिन एक दिन वो अपने कमरे में हैंग्ड मिली, फांसी लगा ली उन्होंने। सबने बोला शायद हस्बैंड का अफेयर था या लड़की एडजस्ट नहीं कर पाई, लेकिन असली कहानी कभी किसी के सामने ही नहीं आई। क्या ये सिर्फ एक सिंपल रीजन से एक्सप्लेन हो सकता है? नहीं, यहाँ भी वार्निंग साइंस होंगे, पर फैमिली ने शायद इग्नोर ही कर दिया या उनको जरूरत ही नहीं पड़ी। दूसरे एक मिडिल एज्ड मैन का केस है। लव मैरिज थी, एक समय तक सब ठीक था, लेकिन कुछ सालों बाद वाइफ ने अलग रहना शुरू कर दिया। उसके बाद अल्कोहल एडिक्शन, ब्लैकमेलिंग और कंटिन्यूअस स्ट्रेस की वजह से उन्होंने सुसाइड कर ली। सोसाइटी ने तुरंत बोल दिया वाइफ अच्छी नहीं थी, लेकिन क्या ये पूरा सच था? नहीं। यहाँ अल्कोहल यूज, इमोशनल स्ट्रगल्स और एंगर इश्यूज का बहुत बड़ा रोल था। तो कहने का मतलब ये है कि मिथ्स हमेशा कहानी को ओवर सिंप्लीफाई कर देते हैं। हम सोचते हैं एक ही वजह होगी, शादी अच्छी नहीं थी, पार्टनर खराब था, लेकिन असली पिक्चर बहुत कॉम्प्लेक्स होती है। और कभी-कभी तो फोर्स्ड सिचुएशन, फोर्स्ड सुसाइड जैसी पॉसिबिलिटीज भी कंसीडर करनी चाहिए। इसलिए एज अ प्रोफेशनल और एज अ फैमिली मेंबर्स हमें अपने एजम्पशंस छोड़कर इंसान की बात सुननी चाहिए। हर सुसाइड केस एक लेयर्ड स्टोरी होती है, राइट? और जब तक हम मिथ्स तोड़कर एम्पैथेटिकली सुनना नहीं सीखेंगे, तब तक प्रिवेंशन थोड़ा मुश्किल है। बात बिल्कुल सही है। और एक्चुअली मिथ्स और मिस बहुत जल्दी फैलते हैं। रियल अवेयरनेस, रियल इंफॉर्मेशन लोगों तक पहुंचाने में समय लगता है, लेकिन मिस इन्फॉर्मेशन बहुत जल्दी पहुंच जाता है। आगे बढ़ने से पहले हम एक आध कमेंट लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, शिवराज रॉय, आपने कमेंट किया है। फर्स्ट ऑफ ऑल, थैंक यू सो मच फॉर योर कमेंट, फॉर द ब्रेवरी कि आपने अपने मन की, अपनी ज़िंदगी की बात हमको बताई है। सो मैं आपका कमेंट पढ़ता हूँ। एज समवन हु इज़ एक्टिवली सुसाइडल, आई थिंक दिस वुड बी एसेंशियल फॉर मी। ये अपने इस सेशन के बारे में बता रहे हैं कि यस, ये बातें सुनना आपके लिए फ़ायदेमंद होगा और आपके परिवार वालों के लिए भी। सो शिवराज बोल रहे हैं कि आई एम डायग्नोज्ड विद बॉर्डरलाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर. So suicidal thoughts have become a norm to me these days, and I'm a 21-year-old male. So YouTube just censored my comment as I was trying to share my suicidal
प्रॉब्लम्स। यस, ये भी है सोशल मीडिया में। जैसा मैंने बताया, मिस इन्फॉर्मेशन फैलने में टाइम नहीं लगता है। अभी एक व्यक्ति ने अपनी जेन्युइन बातें हमसे शेयर करना शुरू किया तो कहीं से ये सेंसर हो गया। खैर, अभी अभी क्या ही कर सकते हैं, दिस इज व्हाट इट इज। एंड in today's age of social media, news and viral posts, they are very significant and very influential. There are harmful content all around. There are posts, viral posts that glorify suicide or romanticize suicide, or there are taglines that use fear to grab attention, and these can actually push vulnerable people further into despair. That's why responsible conversation, open conversation is critical. You must take whatever you see online with a pinch of salt. So I think YouTube is censoring my comments also. YouTube censor, ये censor वाला हो गया. So just 7 months ago, I was diagnosed with borderline personality disorder, and that explains why I'm so suicidal. Yes, यहाँ पर एक और चीज़ बात करने की है. यस, शिवराज रॉय, आपने जो बोला है दैट इज़ कम्प्लीटली लेजिबल एंड दैट इज़ कम्प्लीटली जस्टिफाइबल. और लोगों का एक मिथ ये भी है कि सुसाइड लोग तभी करते हैं जब जो मानसिक रूप से बीमार होते हैं. यस, ये अधिकतर केसेस में सही होता है, बट कुछ सुसाइड्स इम्पल्सिव भी होते हैं. बट उनके बारे में हम अभी थोड़ी देर बाद बात करेंगे. हमारे पास एक और कमेंट आया है अंशुल से. I have dealt with suicidal thoughts a few weeks ago. I am recovering. Anshul, thank you for sharing your thought and I wish you well. आप इससे लड़ सकते हैं. हेल्प हमेशा अवेलेबल है, सपोर्ट हमेशा अवेलेबल है. यू कैन रीच आउट टू शाल्वी, यू कैन रीच आउट टू मी, यू कैन रीच आउट टू एनी ऑफ द सपोर्ट mechanisms that you have, that we have as a country, as a society, and we are there for you. We have another comment. One day when I wanted to end everything, I actually dialed one of the suicide helplines available on Google search, but it was highly disappointed by it, since the responder did not know how to how to tackle this case. Unfortunately, this is not unheard of. जो गवर्नमेंट हेल्पलाइंस होते हैं, इवन एनजीओ हेल्पलाइंस होते हैं, बट आई एम टेलिंग यू, मे बी आपका एक्सपीरियंस थोड़ा सही नहीं रहा हो, बट ये हेल्पलाइंस काम करते हैं. इनमें जो स्पेशलिस्ट, जो काउंसलर्स, जो थेरेपिस्ट्स जाते हैं, जो साइकोलॉजिस्ट्स जाते हैं इसमें सर्विस देने के लिए, इन हेल्पलाइंस में सर्विस देने के लिए, दे रियली नो, दे आर ट्रेन्ड. अब देखिए, किसी भी चीज़ में नेगेटिव एक्सपीरियंस हो सकता है जिस थेरेपिस्ट से आपकी बात हो रही हो, या जो पर्टिकुलर सिचुएशन आप डील कर रहे हो सकता है उसमें आपकी हेल्प वो सही से नहीं कर पाए हो, बट हैव फेथ, सिस्टम है. एंड शाल्वी, एज ए साइकोलॉजिस्ट, हाउ डू यू सी द इम्पैक्ट ऑफ सोशल मीडिया ऑन मेंटल हेल्थ? कैन अवेयरनेस कैंपेन्स ऑन दीज same platforms counter the damage of misinformation? Like, हम अभी YouTube और Instagram के बारे में बात कर रहे हैं कि इसमें मिसइंफॉर्मेशन बहुत फैल रहा है, लेकिन हमको अपनी बात करने के लिए भी इन्हीं प्लेटफॉर्म्स का सहारा लेना पड़ता है, राइट? बिल्कुल, बिल्कुल. आपने एक क्वेश्चन रेज किया, थैंक यू सो मच. मैं कब से सोच रही थी कि इस तरीके का कुछ जवाब देने का मुझे मौका मिले, और बहुत अच्छा लगता है कि जो लोग इन सब चीज़ों से बाहर आ जाते हैं और एटलीस्ट फाइनली एक्सेप्ट करते हैं कि हाँ, कुछ था जिससे मैं बाहर निकल आया. वो एक बहुत अच्छी कोशिश है एक्चुअली, जो लोग भी ये बातें शेयर कर पाते हैं. बट यहाँ पे कुछ चीज़ें जो मैं इतने टाइम से ऑब्जर्व कर रही हूँ, या जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे अगर हम एक राइट एंगल पे जा रहे हैं तो बहुत सारे रॉन्ग एंगल्स भी हैं. एक्चुअली रॉन्ग एंगल्स ज़्यादा हैं, राइट एंगल्स बहुत कम हैं, इसलिए लोग ज़्यादा फोकस नहीं कर पाते हैं. तो शुरुआत करना चाहूँगी कि जैसे कि आज के ज़माने में मिस इन्फॉर्मेशन सच से तेज़ स्प्रेड हो रही है, सच से भी ज़्यादा. और जब बात सुसाइड और मेंटल हेल्थ की हो, तो ये और भी डेंजरस होती जा रही है.
हम सबके पास फ्री एक्सेस है इंटरनेट का, राइट? लेकिन राइट। सही और गलत के बीच का डिफरेंस हर कोई आइडेंटिफाई नहीं कर पाता है। इसी वजह से सोशल मीडिया एक तरफ अवेयरनेस का टूल है और दूसरी तरफ वल्नरेबल लोगों के लिए ट्रिगर भी बन सकती है। आ, मेरे एक्सपीरियंस में मैंने देखा है कि जैसे कि कोई सुसाइड केस वायरल होता है, उसके अराउंड एक नैरेटिव बन जाता है। फॉर एग्जांपल अभी के टाइम पे बहुत सारे वायरल पोस्ट दिखते हैं जिसमें बताया जाता है कि कुछ टाइम पहले मैंने भी वो पोस्ट देखा था कि मैन आर फोर्स टू कमिट सुसाइड बिकॉज देयर वाइफ्स आस्क फॉर एलिमनी। गलत कुछ भी नहीं है, पूरी तरीके से सही भी नहीं है एक्चुअली। अब देखिए इसका एंगल समझने की कोशिश कीजिए कि लोगों ने उसको कैसे डिग्निफाई किया। अब उस इंसान ने अपनी लाइफ खत्म कर ली, वो चला गया इस दुनिया से। लोगों ने उसकी कहानी को अपनी अपनी तरह से इंटरप्रेट करना शुरू कर दिया। कोई सिंपैथी कलेक्ट कर रहा था, तो कोई उसको अपनी आइडियोलॉजी प्रूव करने के लिए यूज कर रहा था, और सोशल मीडिया एल्गोरिथम इसे और पुश करते जा रहे थे। रिजल्ट क्या होता है? कुछ लोग बस स्क्रॉल करके भूल जाते हैं एक समय के बाद, कुछ डिस्टर्ब हो जाते हैं, जो शायद अपनी लाइफ में खुश थे, उन्हें भी डाउट होने लगता है, जिनकी शादी होने वाली थी उनको ओवरथिंक करने का मौका मिल जाता है। और आजकल के ट्रेंड ये है कि हर कोई एक स्टोरी या एक पोस्ट डालकर अपने आप को एक रोल मॉडल समझने लगा है। लेकिन असली सवाल ये है कि क्या हमने खुद पर काम किया है? क्या हमने प्रूफ या ऑथेंटिक सोर्स से वेरीफाई किया है कि इस तरह की पोस्ट कितनी रियल है, क्या है? आप न्यूज़पेपर्स पढ़िए, पूरी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कीजिए, बट इतना टाइम किसी के पास नहीं है। यही वजह है कि मैं कहती हूँ माइंडफुल कंजप्शन ऑफ सोशल मीडिया इज वेरी क्रिटिकल। अगर आपको कोई कंटेंट डिस्टर्ब कर रहा है, तो बिना समझे उसे आगे शेयर प्लीज मत कीजिए। हर वायरल स्टोरी को ब्लाइंडली एक्सेप्ट करना सेफ नहीं है, स्पेशली बच्चों और यंगर जनरेशन के लिए, जिनके पास फोन और इंटरनेट का इजी एक्सेस है। उनके लिए तो ये एक ऑप्शन बनता जा रहा है। अगर स्ट्रगल हुई तो सुसाइड एक सोल्यूशन है। ये सोच बहुत ज्यादा खतरनाक है। तो अवेयरनेस कैंपेन्स का रोल यहाँ डबल इम्पॉर्टेंट हो जाता है। जब हम रिस्पॉन्सिबल और एविडेंस बेस्ड कॉन्वर्सेशंस करते हैं सोशल मीडिया पे, चाहे वो साइकोलॉजिस्ट हों, डॉक्टर्स हों या एजुकेटर्स हों, तभी मिस इन्फॉर्मेशन का काउंटर हो सकता है। अवेयरनेस का मतलब सिर्फ एक पोस्ट या एक स्लोगन नहीं है, बल्कि रिस्पॉन्सिबिलिटी और वेरीफाइड इंफॉर्मेशन देना है, जो लोगों को स्ट्रेंथ और कोपिंग स्किल्स सिखाए, ना कि डिस्पेयर। एग्जैक्टली। अवेयरनेस एक्चुअली सही में एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हमारे पास कुछ और कमेंट्स आए हैं। तनिषा बोल रही है, माई रूममेट ट्राई टू कमिट सुसाइड ड्यू टू फेलियर, फॉर बीइंग यूज्ड, फॉर बीइंग misunderstood by everyone around her. Thankfully, I stopped her carefully, and now she is in college and she is safe. Very well done, Tanisha. Efforts like this, friends like this, are what make a difference for someone who is in a tough spot, who is in a condition which no one else can understand, and even we cannot understand. But the thing is, we don't need to understand everything. We just need to support. इतना हमको मालूम होना चाहिए कि अगर किसी के मन में सुसाइडल आइडिएशन आ रहा है, कोई थॉट आ रहा है अपनी जिंदगी खत्म करने के बारे में, तो हमारा काम है, हमारा कर्तव्य है उसको सपोर्ट देना, उसको हेल्प करना। जब ये विपदा टल जाएगी, जब ये कंडीशन इमरजेंसी खत्म हो जाएगी, तब हम लोग डिस्कस कर सकते हैं कि कारण क्या था, उसको कैसे डील कर सकते हैं। एंड इनफैक्ट वही करना चाहिए। एक बार सुसाइडल अटेम्प्ट को पर सपोर्ट दे देने के बाद काम खत्म नहीं हो जाता है, वो तो बस एक इमरजेंसी रिस्पॉन्स है। उसके बाद एक्चुअली उसका रूट कॉज क्या है वो पता करके, कोई मेंटल हेल्थ सिचुएशन है, कोई डिसऑर्डर है, कोई डिप्रेशन है, ये सब चीज़ें डायग्नोज करके फिर थेरेपी, फिर ट्रीटमेंट और फिर कंटिन्यूअस सपोर्ट देना पड़ता है। सुसाइड के लिए सुसाइड प्रिवेंशन इज नॉट अ वन डे जॉब। आपने किसी व्यक्ति को हेल्प करके सुसाइड करने से रोक लिया, बहुत अच्छी बात है, एब्सोल्युटली परफेक्ट, लेकिन काम वहां पर खत्म नहीं होता है। उसका सपोर्ट कंटिन्यूअस चलना चाहिए। इंस्टाग्राम पर एक कमेंट आया है, ये यूजर का नाम है दिल से दो अल्फाज दोबारा फिर से। ठीक है, अच्छा यूजर नेम है, बट ठीक है। हाय, आई हैव ऑल्सो
I have also I have also had ideas of suicide twice in my student life, but I am strong. Very much. I'm glad that you are stronger now, and thank you so much for sharing something as sensitive as this. Thank you. And we have more comments here. शिवराज शिवराज कंटिन्यूज शिवराज की स्टोरी हम लोग सुन रहे थे दैट जो रिस्पॉन्डर है ही डिड नॉट नो हाउ टू हैंडल समवन हु इज़ अबाउट टू एंड देयर लाइफ. I had to tell them to help me calm down, and that was very heartbreaking, to be honest. I, uh, yes, I can imagine being in a situation like this where someone you think you trust to help you are actually helpless themselves. It happens, but I'm very sorry that this happened to you, and I'm very, very happy, very glad that you're most probably out of that. Keep the support going, and we are always there. Support is always there. Shivraj is also saying my boyfriend was always there when wait, ये scroll नहीं हो रहा है, just a moment. हाँ, my boyfriend was always there when suicidal thoughts started to begin when I was 19, and even when we broke up. Now I'm grateful that someone tried to help me. यस, जैसे तनीषा ने अपने दोस्त के लिए किया, जैसे आपके बॉयफ्रेंड ने आपके लिए किया. यस, इसी तरह ये कड़ी बनती है. हर एक को एक सपोर्ट चाहिए होता है. वो आपका दोस्त हो सकता है, वो आपके हस्बैंड या वाइफ हो सकते हैं, वो आपके बच्चे भी हो सकते हैं, वो आपके पेरेंट्स हो सकते हैं, वो आपका डॉक्टर हो सकता है, आपका थेरेपिस्ट हो सकता है. बट सपोर्ट तो चाहिए. हम लोग बचपन से पढ़ते हैं, स्कूल्स में पढ़ते हैं, इंसान एक सामाजिक प्राणी है. ह्यूमन बीइंग्स आर सोशल एनिमल्स. हम लोग अकेले नहीं रह सकते रियली. और इस तरह की सिचुएशन जब हमको लगे कि जिंदगी में कुछ रखा ही नहीं है, ऐसी सिचुएशन कब आ जाएगी हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हैं. कोविड का समय देख लीजिए. कोविड के समय क्या लग रहा था हमको 2020 में, तो फिर भी कुछ हद तक ठीक था. 2021 में जब सेकेंड वेव चल रही थी, तब क्या कंडीशन थी, किसी ने सोचा ही नहीं था कि ऐसा हो सकता है, बट हुआ. और उसके बाद हम लोग उससे बाहर निकले. तो एक दूसरे की मदद करना और कंटिन्यूअसली हम सपोर्ट करते रहना और इस बारे में बात करते रहना बहुत बहुत जरूरी है. नाउ इफ आई आस्क्ड यू कि I mean, what is the core reason why someone commits suicide? अभी जो थोड़ी देर पहले हमने बात की थी कि आपका आंसर हो सकता है कि इट मे बी डिप्रेशन. इट इज अ कॉमन मिसकंसेप्शन दैट डिप्रेशन ऑलवेज एंड्स इन सुसाइड. नहीं, कोई डिप्रेस्ड है, किसी को आज डिप्रेशन का डायग्नोसिस मिला है, उसका ट्रीटमेंट चालू हुआ है, तो इसका मतलब ये नहीं कि ही इज डूम्ड फॉर लाइफ. If promptly and properly treated, depression can be cured like any other disease. Like any other disease, there is a severity spectrum in depression. How the disease progresses varies from person to person. But more importantly, there are other disorders which can prompt vulnerable people to commit suicide, like personality disorders, like substance abuse, eating disorders. And even with all this said, suicidal thoughts or ideation or an attempt does not exist exclusively in the presence of any kind of psychological condition only. Sometimes it is impulsive, without forethought or planning. The threat is real. For every death by suicide, there might be 20 more non-fatal attempts at suicide. Young people struggling with exam pressure, rejection in romantic relationships, disappointment in job interviews, or feeling pressured or bullied or harassed at workplace. It really could happen to anyone, and therefore it is so important to be aware, to be vigilant. Don't you think, Shalvi? You must have dealt with patients in all ages and conditions. Please share your experiences. Yes, absolutely. The threat is very real. जैसे आपने कहा कि हर एक सुसाइड के केस के पीछे मल्टीपल अटेम्प्ट्स या स्ट्रगल्स छिपे हो सकते हैं, मे बी.
और मुझे अपने प्रैक्टिस के एक्सपीरियंस से ये समझ आया है कि रीजंस अलग-अलग होते हैं, डिपेंडिंग ऑन एज, लाइफ स्टेज और सिचुएशंस। चलिए बात करते हैं हम यंग एडल्ट से, ठीक है? फॉर एग्ज़ाम्पल अ, जब मैं उनका कुछ ऐसे यंग एडल्ट्स थे जिनसे मुझे पर्सनली सेशंस में जुड़ने का मौका मिला, तो जब उनके साथ काउंसलिंग करती हूँ, तो अक्सर मुझे लगता है कि उनकी लाइफ में पैरेंटल रोल बहुत लिमिटेड हो गया है। पेरेंट्स उनके नीड्स फुलफिल तो कर देते हैं, अच्छा फ़ोन, अच्छी कोचिंग, गुड लाइफ़स्टाइल, बट एक इमोशनल खालीपन रह जाता है। एक क्लाइंट, एक टीनेज बॉय मुझसे कहता है, मेरे पास सब कुछ है, लेकिन कोई मुझे समझता नहीं है, कोई 2 मिनट बात नहीं करता है। जब अफेक्शन और कम्युनिकेशन मिसिंग हो जाता है, तो बच्चे अपनी दुनिया ऑनलाइन और ऑफलाइन फ्रेंड्स में ढूँढते हैं। वहाँ कभी रिलेशनशिप प्रेशर आता है, कभी ब्लैकमेलिंग मिलती है, कभी बॉडी शेमिंग और कभी एक्सप्लॉइटेशन। मैंने केसेस देखे हैं जहाँ यंग गर्ल्स को रिलेशनशिप के नाम पर इमोशनली ट्रैप करते हैं, उनके पिक्चर्स का मिसयूजेस करते हैं, उन्हें ब्लैकमेल किया जाता है। ये सिचुएशंस उन्हें सुसाइडल सोच तक ले जाती है। देखिए किस तरीके से सिचुएशंस फॉर्म होती है, एक डिप्रेसिव बिहेवियर कैसे फॉर्म होता है, उसके पीछे के रीजंस क्या हैं। फिर आते हैं मैरिड पीपल्स। सोसाइटी अक्सर उनके स्ट्रगल्स को सिंप्लीफाई कर देती है। शादी अच्छी नहीं थी या पार्टनर गलत था, लेकिन रियल स्टोरी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होती है, राइट? मैंने एक डोमेस्टिक वायलेंस विक्टिम विमेन का केस देखा जो आउटवर्डेडली एक अच्छे परिवार में थी, जैसे कि पहले मेंशन किया था। सबको लगता था सब ठीक है, लेकिन अंदर ही अंदर वो आइसोलेशन और हैरेसमेंट झेल रही थी। एक और केस में एक मैन जिनकी लव मैरिज थी, कुछ साल बाद पर्सनल इश्यूज, ब्लैकमेलिंग और अल्कोहल एडिक्शन की वजह से सुसाइड कर गए। यहाँ भी सोसाइटी ने तुरंत एक मिथ बना दिया कि वाइफ की वजह से हुआ है, बट सच ये था कि मल्टीपल फैक्टर्स इसमें इन्वॉल्व थे, जिन पे कभी किसी ने काम ही नहीं किया। अब बात आती है कि वर्क प्लेस प्रेशर और हैरेसमेंट भी एक बहुत बड़ा रीजन है। अक्सर लोग ओपनली इस पे बात नहीं करते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर कंपैरिजन, बुलिंग और अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस इंसान को डेमोलाइज कर देते हैं। जो सेंसिटिव होते हैं वो इस प्रेशर को झेल नहीं पाते हैं। और सबसे बड़ा इशू है आज के टाइम पे एग्जाम प्रेशर, और ये जो मेडिकल स्टूडेंट्स के साथ हर साल हो रहा है, ये तो एक हाईलाइटेड एरिया है। स्टूडेंट कोचिंग और कंपटीशन के दौर में अपनी आइडेंटिटी सिर्फ मार्क्स और रैंक से डिफाइन करने लगते हैं। जब फेलियर मिलता है तो उन्हें लगता है कि लाइफ का कोई पर्पस नहीं बचा। कई यंग स्टूडेंट्स ने मुझसे बात की और कहा, मुझे लगता है कि अगर मैं एग्जाम में फेल हो गया या हो गई, तो मैं अपने पेरेंट्स को कैसे फेस करूँ या करूँगा। यहाँ पर भी पेरेंटिंग और कम्युनिकेशन का रोल बहुत बड़ा है। पेरेंट्स को सिर्फ रिजल्ट्स नहीं, मुझे लगता है कि बल्कि प्रोसेस और चाइल्ड के इमोशंस पे भी ध्यान देना चाहिए। अब इतना तो कर ही सकते हैं पेरेंट्स। मुझे लगता है कि ऐसे टाइम पे कभी-कभी वर्कशॉप्स, ओपन कन्वर्सेशंस और रेगुलर अवेयरनेस प्रोग्राम्स बहुत ज़रूरी हो जाते हैं। चाहे स्कूल्स में हो, कॉलेजेस में हो या वर्क प्लेसेस में हो, क्योंकि जब तक हम स्ट्रेस, हैरेसमेंट और मेंटल हेल्थ को ओपनली डिस्कस नहीं करेंगे, तब तक प्रिवेंशन डिफिकल्ट ही रहेगा। इट इज़ वेरी सरप्राइजिंग कि आज के ज़माने में कोई जेंडर, कोई एज ग्रुप इस चीज़ से अछूता नहीं है। सही अभी बात है। आपने बहुत सारे एग्जाम्पल्स दिए यंग पीपल के, मतलब हुँ, चाहे तो वो कॉलेज स्टूडेंट्स, स्कूल स्टूडेंट्स हों, बट हुँ, एल्डरली पॉपुलेशन जो मिडिल एज टू एल्डरली एज में है, उनमें भी हुँ, सुसाइडल अटेम्प्ट्स देखने को मिलते हैं। क्यों? अगर किसी को कोई टर्मिनल इलनेस है, अगर हुँ, किसी को ऐसा लग रहा है कि मेरे जिंदा रहने की वजह से मेरी परिवार को मेरे ट्रीटमेंट के लिए बहुत मुश्किल हो रही है, परिवार का पूरा जमा पूंजी जो है वो सब मेरे ट्रीटमेंट में चली जा रही है, ऐसे केसेस होते हैं। मिडिल आप किसानों के बारे में, किसानों के सुसाइड के बारे में आप लोगों ने न्यूज़पेपर में सुना था। आप ये समझ लीजिए कि मतलब जो चीज़ आप न्यूज़ में सुन रहे हैं या पेपर्स में पढ़ रहे हैं या सोशल मीडिया पर देख रहे हैं, ये टिप ऑफ द आइसबर्ग है। ये बस एक चीज है जो आपके सामने आ गई है। एक्चुअली वो हमारे आसपास, हमारे सामने भी हो सकता है। इसीलिए हमको बहुत विजिलेंट रहना है अगर हम अपनी सोसाइटी को सुसाइड फ्री या एटलीस्ट सुसाइड सपोर्टिव, मतलब सपोर्टिव
फॉर पीपल हु हैव सुसाइडल आइडिएशन, ये हम अगर करना चाहें तो। शिवराज रॉय ने आगे कमेंट किया है कि आई सॉ माई मदर ट्राई टू कमिट सुसाइड व्हेन आई वाज 5 years old and that was the triggering point of borderline personality. 19 years later, children are very sensitive towards suicide. I feel children are sensitive towards everything. अभी पेरेंटिंग पहले के जैसी नहीं रही है, ऑटोमेटिक होने वाली, जहां एक कंबाइंड फैमिली है, एक जॉइंट फैमिली है जहां पर 10 लोग हैं, बच्चे भी 3-4 हैं, तो वैसी अपब्रिंगिंग आज नहीं होती है, नहीं हो पाती है। न्यूक्लियर फैमिलीज में मम्मी पापा को वैसे भी टाइम नहीं रहता अपने बच्चों को देखने का, चाहे वो टॉडलर स्टेज से हो, चाहे वो स्कूल की बात हो, चाहे वो कॉलेज की बात हो, ये होता रहता है अल्टीमेटली। तनिषा पूछ रही है, तनिषा हैज अ क्वेश्चन फॉर यू शाल्वी। सो व्हाट टू डू इफ पीपल कीप ब्लैकमेलिंग इनडायरेक्टली बाय सेइंग दैट ही और शी विल डाई if I don't get this or that? ओके, तनिष्का, मैं आपसे एक चीज़ कहना चाहूँगी कि बिल्कुल भी हो सकता है आपकी पहली गलती रही हो या कोई भी रीज़न रहा हो, लेकिन एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखिएगा कि आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। पहली बात तो, अगर इस तरह का इंसान है, आपको बिल्कुल भी शक है, तो कुछ फैक्ट्स, कुछ प्रूफ्स अपने पास भी हमेशा रखिए। अगर वो भी नहीं है, तो सबसे पहले जो आपके क्लोज़ वन्स हैं, लव वन्स हैं, उनसे कॉन्टैक्ट कीजिए, ना कि खुद से प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूँढने की कोशिश कीजिए। कोशिश कीजिए कि उनको, अगर ऑनलाइन है तो साइबर क्राइम से कांटेक्ट कीजिए, पुलिस से कंप्लेन कीजिए, लेकिन डरिए मत। आप जितना डरेंगे वो आपको उतना डराएँगे। सो बी अवेयर। अगर आप सोशल मीडिया पे हैं या कोई ऑफलाइन आपको इस तरीके से कर रहा है, तो जो आपका डर है ना, ये आपकी लाइफ को एंड भी कर सकता है। तो कोशिश कीजिए कि इन चीज़ों के लिए एक्शन लीजिए, राइट? एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। हुँ, देखिए, किसी भी तरह के ब्लैकमेल को एक्सेप्ट करना सही नहीं है। क्या नहीं है। होगा, मतलब आप ये नहीं सोच सकते, आपको ये समझदारी होनी चाहिए कि आज अगर हुँ, आपने एक चीज अग्री कर ली हुँ, बिकॉज ऑफ फियर ऑफ ब्लैकमेल, बिकॉज ऑफ आपके अपने शेम, तो हुँ, कल को वो दूसरी चीज या तीसरी चीज मांगना शुरू करेंगे ही करेंगे। मतलब एब्सोल्यूटली। ये होता है, ये ऐसा ही हुँ, होता है। हुँ, तो आपको मतलब एक समय आएगा जब आपको ये डिसीजन लेना पड़ेगा कि हो सकता है गलती हो गई तो हुँ, इंसान से गलती होती है, बट अब आगे इस चीज को और खराब करने से बेहतर है हुँ। टॉक टू योर पीपल, टॉक टू योर फ्रेंड्स, टॉक टू योर पेरेंट्स, टॉक टू द पुलिस। कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, क्योंकि ब्लैकमेलिंग हमेशा एस्केलेट ही होती है, ब्लैकमेलिंग कभी बंद नहीं होती है, खत्म नहीं होती है। बिल्कुल। The fact is, the world is growing progressively towards suicide prevention. Does make me hopeful. Since we didn't have suicide helpline 50 years ago. अब 50 years ago की बात तो दूर की बात है, even 20 years ago सुसाइड के बारे में लोग बात नहीं करते थे, इतने काउंसलर्स भी नहीं थे, इतने साइकोलॉजिस्ट भी अवेलेबल नहीं थे जो आपको मदद प्रोवाइड कर सकें। ये टर्म सुनने को मिलता था, किसी ने कुछ भी कर लिया या किसी को कोई भी बीमारी होगी तो सबसे पहले क्या बोलते थे, वो तो पागल है, ही इज क्रेजी। लेकिन अब हमारे पास, हमारी एजुकेशन में, हमारी डे टू डे प्रैक्टिस में ये बात आ गई है कि देयर इज नो सच थिंग एज क्रेजीनेस, देयर इज नो सच थिंग एज मैडनेस। पागलपन कुछ नहीं होता है। आपको अगर कोई बीमारी है तो उस बीमारी का नाम है, उस बीमारी का इलाज है। आपको कोई समस्या है तो उस समस्या को सपोर्ट करने के लिए मदद मौजूद है। Tanisha writes, harassment actually breaks, but it is not impossible to come out of all this. There are people who survive, as giving up life is not a good idea at all. Right, absolutely right. Giving up, जिंदगी से अलविदा कह देना, ये कतई सही नहीं है, और इससे किसी का भला नहीं होता है कि जिसने आपको मान लीजिए हरास किया है, उसको कोई सजा नहीं मिली अगर आपने लड़ाई छोड़ दी। बिल्कुल। ये इजी नहीं होता है। मतलब हम ये नहीं बोलना चाह रहे हैं कि अगर आपके मन में ऐसे ख्याल आ रहे हैं तो आप इजीली उसको डील कर सकते हैं। इजी नहीं होता है, बिल्कुल इजी नहीं होता है। हम सिर्फ ये बोलना चाह रहे हैं कि
आप अकेले नहीं हैं, आपके पास सपोर्ट है। कई बार सबसे बड़ी मुश्किल यही होती है कि मदद कहां से मिले। भारत में किरण हेल्पलाइन है, किरण, उसका टोल फ्री नंबर है 1-800-599-0019, 1-800-599-0019। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको ये मिल जाएगा, जो सरकार की मानसिक स्वास्थ्य सेवा है। इसके अलावा कई एनजीओज भी हैं, जैसे एक एनजीओ है जिसका नाम है आसरा। आसरा आसरा का फोन नंबर है 9820466726। चौबीसों घंटे ये हेल्पलाइंस आपकी सेवा के लिए उपलब्ध हैं। और उससे भी बड़ी बात, आपके दोस्त, आपके परिवार, आप किसी से भी खुलकर 2 मिनट बात कर लें तो कोई भी सिचुएशन डिसेलरेट हो सकती है। आपको धैर्य रखना होगा, आपको पेशेंस रखना होगा और आपको भरोसा रखना होगा। ये इंसानियत है। शाल्वी, आप बता सकते हैं कि प्रोफेशनल हेल्प लेने की प्रक्रिया कितनी आसान है या कितनी कठिन है आपके हिसाब से, और लोग उस हेजिटेशन को कैसे तोड़ सकते हैं? देखिए, हेजिटेट करने जैसा तो कुछ भी नहीं है। हम कोई ऐसे नहीं हैं कि प्रोफेशनल्स की आपको जज करेंगे या आपसे पूछेंगे कि ऐसा क्यों हुआ, आपने ऐसा क्यों किया। ये चीज़ें प्रोफेशनलिज्म में नहीं आती हैं। तो ये चीज़ समटाइम्स होता है कि इसी डर से लोग पीछे हट जाते हैं कि मे बी घर वालों के सामने उतना क्लोज नहीं होते हैं अपनी चीज़ों को शेयर करने में। तो ये जो एक डर होता है ना, ये आपको और डराता है। वो कहते हैं ना कि एक झूठ को छुपाने के लिए हमें 100 झूठ बोलने पड़ते हैं और आप एक लूप में बनते चले जाते हैं। तो उस लूप को तोड़िए, यही वो वक़्त है। अगर आपको सीख मिलनी है तो मे बी हो सकता है ये एक मोमेंट है। तो थोड़ा-सा पेशेंस रखिए। सबसे पहले तो अगर आप कुछ ब्लैकमेलिंग या इस तरह के केसेस में फँस रहे हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि हड़बड़ाइए मत, थोड़ा बैठिए और किसी समझदार इंसान को अपने साथ बिठाइए जो एक मैच्योर डिसीज़न आपको दे सके। कई बार सिचुएशंस होती हैं जो हाथ से निकल जाती हैं। उसके बाद आपको ऐसा लगता है कि आप एक गिल्टी के फॉर्म में चले गए कि नहीं, मैंने गलती कर दी। आई नीड समवन जो मुझे गाइड करे आगे कैसे बढ़ना है। तो आप बिना सोचे समझे कोशिश कीजिए थेरेपिस्ट से बात करने की। कई बार एक्सपीरियंसेस अच्छे नहीं होते हैं, कुछ थेरेपिस्ट में भी हो सकता है इस तरह के केसेस लेना पसंद नहीं करते हैं, बट स्टिल वो ले लेते हैं। तो इससे क्या होता है कि आपका होप टूट जाता है। तो अब ये तो नहीं कहा जा सकता है बिकॉज़ मार्केट में हर चीज़ अवेलेबल है। चूज़ वाइज़ली, चीज़ों को ठीक से चूज़ कीजिए। और मैं ऐसा प्रोफ़ेशनल्स के लिए भी कहूँगी कि अगर आप इस तरह के केसेस नहीं ले पाते हैं, तो प्लीज़ किसी का टाइम ना वेस्ट करें। इससे सामने वाले का ट्रस्ट टूटता है, वो ऑलरेडी टूटा हुआ ही होता है। तो ये दोनों तरफ से बहुत ज़रूरी है। आराम से आइए, एज़ अ थेरेपी की ओर में भी अगर आप जुड़ेंगे, तो यहाँ पे भी आपको ऐसा कोई स्पेस नहीं मिलेगा, जो आपको जज करने के लिए हो। मेरे हिसाब से तो यही ठीक है। राइट। किसी भी प्रोफेशनल को सबसे पहले 2 चीज़ें ही सिखाई जाती हैं काउंसलिंग, चाहे वो थेरेपी के लिए हो, चाहे काउंसलिंग के लिए हो, चाहे कोई एक्चुअली ट्रीटमेंट के लिए हो। पहला होता है एम्पैथी, दूसरा होता यस, है नो जजमेंट। नो हम जजमेंट। क्या सोचते हैं, हमारे मन में क्या है, आपकी जगह हम क्या होते तो हम क्या करते, दैट डजंट मैटर एट ऑल। और ये हुँ, चीज सिर्फ प्रोफेशनल्स नहीं, ये आप अपने दोस्तों, अपने परिवारजनों के लिए भी यही चीज सोच सकते हैं। यही बिल्कुल। चीज आप, यही वो ऐसी चीज है जो आपको किसी का सपोर्ट बना सकती है, किसी का सहारा बना सकती है, किसी की जिंदगी और मौत के बीच का डिफरेंस बना सकती है। नो जजमेंट। जो हुआ है पहले उसको डील करेंगे। जजमेंट के लिए बहुत, जिंदगी बहुत लंबी है। रिमेंबर, सुसाइड इज प्रिवेंटेबल। Awareness, compassion, and timely help can save lives. If you or someone you know is struggling, please reach out to a counselor, a helpline, or even just a friend. अगर आप काम करते हैं, अगर आप नौकरी पेशा हैं, तो पता कीजिए आपकी, और आजकल हर ऑर्गेनाइजेशन में एक मेंटल हेल्थ पॉलिसी होती है। हुँ, जहां पॉलिसी की बात आती है, एक चीज मैं जरूर बता दूं कि अनफॉर्चुनेटली जो हेल्थ इंश्योरेंस होता है, मैक्सिमम हेल्थ इंश्योरेंस कंपनीज इन इंडिया डू नॉट कवर एनी मेंटल इशू, एनी मेंटल हेल्थ कंडीशन। ये यस, शायद आगे जाके चेंज हो,
शायद इसमें थोड़ा सा सरकार की तरफ से अगर थोड़ा सा प्रेशर आए, IRDAI की तरफ से थोड़ा सा प्रेशर आए, या आपके ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से प्रेशर आए, तो शायद ये हो सकता है। बट आज की तारीख में आप सेल्फ हार्म का कोई भी ट्रीटमेंट आप मेडिक्लेम से नहीं कर सकते। ये भी अपनी तरफ से, मतलब हम लोग फंसे हुए हैं, और इसीलिए एक दूसरे को सपोर्ट देना, एक दूसरे को जानकारी देना, एक दूसरे से खुल के बात करना ही हमारे पास आज की तारीख में सबसे सही तरीका है। हमारे पास कुछ और कमेंट्स आए हुए हैं। कहाँ गया? शिवराज अपनी कहानी आगे बता रहे हैं। आई ट्राई टू टेल माई एल्डर सिस्टर एंड मदर अबाउट माई सुसाइडल थॉट्स, but they didn't care about it. All in all, I had to help myself from not dying. I had to change my therapist because they said gay is a choice. That is very heartbreaking. कोई मतलब I can't say, I can't express what I feel about this. So being straight and marrying a girl and ruining their life would have been the wrong choice, and I'm sure कि आपको बहुत बड़ा, बहुत जिम्मेदारी से भरा ये डिसीजन लेना पड़ा। I'm very glad that you are sharing this with us. So before we have been talking for around 50 minutes, and before we close, so I'm giving the stage back to Shalvi. Please, this is an open session, and tell us whatever you think about the session and whatever you want to convey to the audience. सो आपने बहुत अच्छा इंटरेक्टिव सेशन किया, तो इससे पहले आप सेशन को क्लोज करें, आई वुड लाइक टू एक्सप्रेस माय हार्टफुल ग्रैटिट्यूड टू आवर होस्ट डॉक्टर अभिनव जी for creating such an interactive and a meaningful conversation on World Suicide Prevention Day. Thank you so much for giving me this platform. मेरी सबसे बड़ी रिक्वेस्ट यही है कि आप सब ये इंटरव्यू ज़रूर सुनें, क्योंकि हो सकता है ये कॉन्वर्सेशन किसी एक इंसान के लिए लाइफ चेंजिंग साबित हो सकती है। बहुत सारी अवेयरनेस मिलेगी आपको यहाँ से, बहुत सारी हिम्मत मिलेगी। सो एज अ थेरेपिस्ट आई एम हियर टू सपोर्ट यू। आप चाहें तो ऑनलाइन सेशंस ईजिली बुक कर सकते हैं, या डायरेक्टली मुझसे बात करने के लिए कॉल कर सकते हैं 9307694265। I repeat it, 9307694265। और अगर आप रेगुलर इंसाइट्स और मेंटल हेल्थ रिलेटेड इंफॉर्मेशन कंटेंट देखना चाहते हैं, तो आप मुझे फॉलो भी कर सकते हैं द थेरेपी क्योर के नाम से, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, फेसबुक और लिंक्डइन पर। स्मॉल लेटर से एक साथ टाइप कीजिए द थेरेपी क्योर, वहाँ आपको मेरे वीडियोस और अवेयरनेस टॉक्स मिलेंगे। एंड वंस अगेन, thank you everyone for listening and for being part of this important conversation. So let's continue spreading awareness and creating a safe spaces for mental health. Thank you so much. थैंक यू शाल्वी। एंड शाल्वी के जो कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन है मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में रखूँगा। जो इंस्टाग्राम पे एक कमेंट आया था, दिल से दो अल्फाज दोबारा फिर से, उन्होंने फिर से एक कमेंट लिखा है, सच अ हीरोइक लेडी, शी हैज़ द पावर टू इंस्पायर मिलियंस। ये आपके लिए शाल्वी। Thank you. Thank you so much. So thank you everyone so much for joining us today, and especially a lot of thanks to Shalvi for sharing her wisdom and experience with us. Let us not end this conversation here. Let us stay connected on social media, YouTube, Instagram and everything, and let us keep this dialogue alive. ये लाइव सेशन ख़त्म होने के बाद भी आप अपने कमेंट्स हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। शाल्वी का जो कॉन्टैक्ट डिटेल्स हैं वो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, इंस्टाग्राम के कैप्शंस में मिलेगा। लेट अस स्प्रेड अवेयरनेस एंड सपोर्ट ईच अदर। एट TLB City, we try to create an open and inclusive workplace, inclusive arena where people from every aspect of life, every authors, musicians, actors, everybody can come together and have some fun, have some meaningful interactions. So it is very important for everybody to have something
other than their core job. इसी को बोलते हैं अपने पैशन को फॉलो करना इसलिए भी जरूरी होता है कि ये आपको वो थॉट देता है, वो पावर देता है कि जहां पर नेगेटिविटी आ रही है वहां पर आप उससे लड़ सकें. एंड आई होप दैट TLB सिटी इज वन ऑफ दोज अरीनास फॉर यू. बस आज के इस इंटरेक्शन के लिए इतना ही. फिर अगले बार किसी न किसी वीडियो में, किसी न किसी इंटरेक्शन में, किसी इंटरव्यू में, किसी पॉडकास्ट में आपसे फिर मुलाकात होगी. थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग दिस लाइव सेशन. Hearty congratulations to all the people who have commented. Thank you so much for sharing your life story with us. Good night, stay safe, and keep spreading the word.